नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ हैं मेरे बैचमेट जो दिल्ली की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। आज हम जानेंगे उनसे हाउसिंग सोसाइटी सिक्योरिटी का एक्चुअल जो ग्राउंड वर्क होता है, क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, विजिटर हैंडलिंग कैसे होती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे करते हैं और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या-क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। ओवर टू यू मिस्टर कपिल। Hi, Sachidanand. हाय, How are you? आई एम वेरी फाइन एंड यू बडी? Good, good, super. So first of all, we need to encourage our team also. Should we should be confident. Our team should be confident so that we can encourage our team, security team, so that we can provide better security personnel to the society या company, industry. अगर उनका मोरल डाउन है तो हम सिक्योरिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके. First of all, myself Kapil Dagar, and I have more than 14 years experience in the security industry. And during college time, I have an NCC C certificate from Army Wing, and having A grade. Apart from this, got the commendation card from DDG R.K. Karwal and Best Cadet Award from former Sheila Dikshit CM. After that, laterally, I have started my career in security industry with SIS Group Enterprises. There in SIS, I have taken training in Gadwa, Jharkhand, and there we have taken 3 month training. In that training, uh, karate, drill, yoga session, and security management. 3 मंथ हमने ये प्रॉपर ऐसे कोर्स किया जिससे हम अपने डिसिप्लिन को, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को कैसे हम हैंडल करते, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं योगा सेशन से, कैसे कोई ऐसी सिचुएशन आती है क्रिटिकल, उसमें हम काम डाउन होके सामने वाले को टेक्टफुल कैसे हैंडल करते हैं. ये सारी एक्टिविटी उस दौरान हमें ब्रीफ की गई, ट्रेन किया गया. Apart from this, we have taken 15 days special fire training in Cuttack, Odisha also. And then after completing training, we got deployment in various locations. I have got opportunity in Chennai, Tamil Nadu. My first deployment as a security officer in CMC Hospital, Christian Medical College. There are around 450 manpower, 450 security personnel I handle, and they're really very challenging side. I don't know Tamil that time, but after continue work there, understanding the language and work culture, learn lot of thing in Tamil Nadu. तमिलनाडु में उसके अलावा फिर उसके बाद हमने डिप्लोमेंट हमारे दिए गया VIT यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ का भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला. उस एक्सपीरियंस के बाद जैसे ही 3 इयर्स कंप्लीट हुए, फिर हमें इंडस्ट्री हुंडई मोटर्स, बड़ी इंडस्ट्री, वहाँ डिप्लोमेंट दिया. वहाँ भी हमने सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया, वहाँ का गेट मैनेजमेंट, विजिटर मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, how to handle incident, mob handling, CCTV monitoring, control, key management. ये काफी एक्टिविटी हमने सीखी वहाँ पे. ऑडिट करना सीखा, एक्सेस कंट्रोल, असेसमेंट,
काफी चीजें लर्निंग का पार्ट रही इस कैरियर में, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। More than around 7 years I performed in Chennai, and I can speak Tamil also now. Really good for me. New language I have learned in Chennai, and good discipline and new environment, new things also learned from Chennai. After 7 years complete in Chennai, I have joined in Gurgaon, Delhi, in G4S Secure Solution. Around 6 years I have performed in Gurgaon. There also I have taken care of major sites like Maruti, TCS, Optum Global. They are also very good learning for me in my local area. Then again, I have got opportunity in DLF, residential property, and this is luxury property. In Gurgaon, during G4S, I have managed the Camellias, DLF Camellias and Magnolias. This is DLF Super Luxury Condominium Society, and I think lastly they have sold one super luxury penthouse in 198 crores, the one flat value. Oh my God. That that is the quality of DLF they are providing to us, and after that I think this is the really good opportunity for me in residential, because अभी क्या है, काफी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा द्वारका एक्सप्रेस है, वहाँ भी काफी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे भी अभी काम चल रहा है। तो आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, रेजिडेंशियल में, खासकर शॉपिंग मॉल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसे मैं डीएलएफ में हूँ अभी एज ए सिक्योरिटी मैनेजर ऑन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, यहाँ भी अराउंड मेरे को 4 to 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। रियली गुड एक्सपीरियंस, और यहाँ भी हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मेनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें फोकस करना होता है विजिटर मैनेजमेंट, डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे आते हैं, डिलीवरी बॉयज आते हैं, मेड आती हैं, ड्राइवर्स आते हैं, उनको प्रॉपर एक्सेस देना, उनको वेरीफाई करके ही हम एक्सेस देते हैं। एक फॉर्म फिलअप कराते हैं एक्सेस देने के लिए, उसमें हमें ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट होती है रेजिडेंट की, जिसे वो फिलअप करके एक फॉर्म फिलअप करके हम उसको एक आईडी क्रिएट कर देते हैं। विजिटर मैनेजमेंट है, ट्रैफिक कंट्रोल है, यहाँ पे भी अनऑथराइज पार्किंग को हम कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी वी आर मैनेजिंग थ्रू द टीम। और अच्छा है, बिग प्रोजेक्ट है ये, लग्जरी प्रॉपर्टी है। अराउंड 1156 टोटल फ्लैट यूनिट है यहाँ पे, और अराउंड 5 एकड़ साइट है। मेनली यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ANPR सिस्टम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रॉपर ऑथराइजेशन के लिए, वैलिड जो रेजिडेंट है उनको वेरीफाई करने के लिए, और उनका डाटा हम अपने सिस्टम में सेव रखते हैं। उसके अलावा एक माइग्रेट टूल होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, वो सब कुछ उस टूल के द्वारा हम यूज करते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट आती है, कोई रेजिडेंट सपोज रिक्वेस्ट डालता है कि मेरा एक गेस्ट आना है, वो प्री अप्रूवल डाल के एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता है, कोड क्रिएट कर देता है, और जो भी रेजिडेंट गेस्ट आते हैं उनके वो कोड शो करता है। सिक्योरिटी पर्सन उस कोड को अपनी माइग्रेट टूल में डालता है, जैसे ही कोड डालेगा उसकी एंट्री एक्सेस हो जाता है। तो सेम टाइम एज ए गेस्ट हैंडलिंग वी आर इन हॉस्पिटैलिटी आल्सो। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमें हॉस्पिटैलिटी की तरह ही काम करना होता है, जो भी गेस्ट रेजिडेंट जो भी आते हैं उनको फैसिलिटेट करना होता है। उससे क्या है, हमें फील कराना है कि आप आए हैं इस DLF की प्रॉपर्टी में और यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं है। उसको स्मूथ तरीके से हम एक्सेस देते हैं वेरीफाई होने के बाद में। देन लिफ्ट एक्सेस मिलता है, वहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल गाइड करता है। लिफ्ट में एक्सेस है, विदाउट एक्सेस नोबडी कैन एंटर इन द प्रीमाइसेस।
This is 5-layer security in our condominium society. First of all, we start from camera, boundary, NPR system, then we come to lobby. Lobby also, we have lobby assistant. They are also verifying the person who is coming, who is going out. Then access control है. ऐसा ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बट last 4 to 5 months really good for me. I have managed lot of things and resolved lots of conflict here. I have managed mob threat also here. Nobody come that time. 3 to 4 media channels come and labor are doing strike because this is under project. This site not completely done by the project. Some project work is also going on. सो प्रोजेक्ट के जो लेबर थे इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक किया था, वो भी मैंने मैनेज किया. रियली इट्स ए गुड, अगेन गुड एक्सपीरियंस. आई हैव हैंडल बिफोर आल्सो मोब थ्रेट. हियर आल्सो आई मैनेज सॉफ्टली ऑल ऑफ द लेबर्स एंड लेबर जो यूनियन के उनके प्रेसिडेंट जो भी हैं उनको मैनेज किया अच्छे से. और एप्रिसिएशन आल्सो दे आर गिविंग, डीएलएफ आल्सो अप्रिशिएट मी. या यू आर रियली गुड to handle this type of critical situation. Then I have control unauthorized parking here. क्योंकि क्या होता है रेजिडेंशियल में अनऑथराइज पार्किंग होती है. कोई भी रेजिडेंट किसी दूसरे रेजिडेंट की पार्किंग में पार्क कर देता है. तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस सेट किया, एसओपी क्रिएट किया है यहाँ पे. क्योंकि न्यू साइट है, क्रिएट जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तब तक प्रोसेस बनेगा नहीं. Yes. तो पहले प्रैक्टिस में स्टार्ट किया, चीजों को प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट किया. पता लगा कि हाँ ये प्रोसेस ठीक है, उसको प्रोसेस को सेट कर दिया और एसओपी में उसको क्रिएट कर दिया हमने उसको. तो सबसे पहले तो अनऑथराइज पार्किंग जो होता है यहाँ पे वो उसको कंट्रोल किया गया. हमने वैलिड स्टिकर इशू किया. जो भी रेजिडेंट उनको फ्लैट नंबर के नाम से ही उनको हमने स्टिकर इशू किया. फिर हमने थोड़ा डिसिप्लिन में लाने के लिए टाइट भी करना होता है सिक्योरिटी में. तो थोड़ा क्लैंपिंग, जो व्हीकल अनऑथराइज होते हैं उनको क्लैंपिंग करना स्टार्ट किया. तो मैनेज हुआ धीरे धीरे. मेनली क्या होता है रेजिडेंशियल में, आपको नाइट में भी कॉल आ जाएगा कि मेरी पार्किंग में किसी दूसरे ने लगा दिया, अभी की अभी खाली करो. तो वो ऐसी सिचुएशन होती है, आपको अपने पूल को छोड़ना नहीं होता क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं रेजिडेंट को. तो उस पूल को ना छोड़ते हुए हम उसको टैक्टफुल हैंडल करते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं. सर आपकी जो इशू है, हम जो भी प्रॉब्लम हम इमीडिएट रिजोल्व करेंगे, थोड़ा आप समय दीजिए, वेट करिए, अदरवाइज आप दूसरी जगह पे पार्क कर ले 10 मिनट. हम अभी कनेक्ट करते हैं उस कंसर्न रेजिडेंट से जिसने आपकी पार्किंग में पार्क किया है. तो उसको कनेक्ट करके हम उसको मैनेज करते हैं. ये चैलेंज होते हैं. बाकी पेट पॉलिसी होता है यहाँ पे. पेट को एक अलग से हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं कि जैसे कि उसको मास्क लगा के रखना है. मजल जो होता है पेट को, कि वो किसी को काट ना ले. सपोज कोई पेट फ्रेंडली नहीं है, तो फ्रेंडली नहीं है तो वो दूसरे के साथ में है तो वो काट सकता है. तो उसका भी हम एक डाटा अपने पास रखते हैं. पेट पॉलिसी के हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं. उसको वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, कब वैक्सीनेशन हुआ है, उसको एक हमने क्लीन भी मेंटेन करना होता है अपनी जो प्रॉपर्टी है. कोई भी रेजिडेंट अगर उसको पेट को लेके चल रहा है तो उसके हाथ में जो उसकी रस्सी है, रोप है, वो हाथ में होनी चाहिए. ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता है. पेट का जो पू होता है, जो वो लिटर करता है, उसके लिए भी उनके हाथ में एक वो होना चाहिए, स्कूप होना चाहिए, जिससे कि वो अगर कहीं पे करता है तो साथ के साथ वो क्लीन करे. क्योंकि क्लीन रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टाइम टू टाइम हम रेजिडेंट को नोटिस अपने कॉन्सियस टीम के थ्रू शेयर करते रहते हैं, जिससे कि सब कुछ सबको पता लग जाए. बाद में ये ना बोले कि हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, आपने बताया नहीं. तो हम टाइमली मैसेज सर्कुलेट करते हैं हर एक चीज का. जो कॉमन एरिया उसको एनक्रोचमेंट नहीं करना है, पेट पॉलिसी फॉलो करनी है, विजिटर मैनेजमेंट फॉलो करना है, डोमेस्टिक हेल्प आपके पास जो जो काम कर रही है. फुल टाइम जैसे मेड होती है, एक पार्ट टाइम मेड होती है.
तो फुल टाइम मेड वो घर में ही रहती है, तो उसके भी हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम फॉलो करते हैं। उसके अलावा और भी चीजें जैसे बेसमेंट है, यहाँ पे बेसमेंट की भी हमने ये फॉलो करना होता है, कोई गाड़ी ना घुस जाए। हो सकता है कि ज्यादा हाइट वाली गाड़ी एंट्री कर जाए और जाके नीचे हमारे कैमरा सिस्टम को, लाइटिंग को डैमेज कर दे। तो वो चीज भी हमें सिक्योरिटी को प्रॉपर ब्रीफ करना पड़ता है कि हमारी जो बेसमेंट की हाइट है इतनी है, इसमें इतनी ही हाइट का ही व्हीकल अलाउड है, तो हम उसको पहले ही रोक लेते हैं, ब्रीफ कर देते हैं। बाकी ANPR सिस्टम हमने लगाया है यहाँ पे, जैसा कि जो ऑथराइज गाड़ियां होंगी वो NPR सिस्टम के थ्रू ही वो अंदर होंगी। अगर वो ऑथराइज है तो बेसमेंट में अलाउ होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, वो रुक जाएंगी। तो ऐसा सिस्टम है, रियली गुड, अप्रिशिएट है। पहले RFID होता था, उससे थोड़ा लेटेस्ट है ANPR। RFID अराउंड आई थिंक 10 to 15 मीटर की डिस्टेंस को कैप्चर करता है, और जो ANPR है ये 6 to 7 मीटर कैप्चर करता है मेरे हिसाब से। बट मेरे को इस पे क्लोजली सीखना पड़ेगा इसको क्या है, लेकिन स्लो मोशन में काम करता है। अगर गाड़ी स्लो आती है तो उस स्पीड लिमिट को देखते हुए वो कैप्चर करता है और ऑटोमेटिक बूम बैरियर ओपन हो जाता है, ऑथराइजेशन जैसे क्लियर होती है, नंबर प्लेट को रीड करता है, ऐसे। बाकी अच्छा है। अभी यहाँ पे मैंने इवेंट मैनेज किए, जैसे होली का भी इवेंट अच्छे से मैनेज किया सेफली। हमने न्यू ईयर इवेंट, न्यूली लॉन्च सोसाइटी है, तो हमने न्यू ईयर भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सिक्योरिटी मैनेज किया, क्रिसमस को अच्छे से मैनेज किया, इवेंट मैनेजमेंट भी अच्छा है। बाकी इस प्रॉपर्टी में क्या है, टेनेंट भी रहते हैं, ओनर्स भी रहते हैं। अभी एसोसिएशन नहीं है, जैसे RWA होता है सोसाइटी के अंदर, अभी वो यहाँ पे है नहीं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 50-60% जब रेजिडेंट आ जाएंगे यहाँ पे, मूव इन हो जाएंगे, तो वो स्टार्टिंग हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्लब है, लग्जरी क्लब है DLF में, जैसे कमेलियाज, मैग्नोलियाज, क्रिस्ट, अरालियाज, ऐसे ही एक हमारे पास लग्जरी क्लब है DLF की तरफ से, वो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ही है। और भी एमिनिटीज हैं यहाँ पे, जैसे जिम है, गेमिंग रूम है, और MPH हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल होता है। कोई भी इवेंट अगर कोई मैनेज करना है, बर्थडे पार्टी, वो सब उसमें सेलिब्रेट होता है। बाकी अच्छा है प्रॉपर्टी, और गुड एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल के लिए। आगे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, न्यू लर्निंग भी है। और आप बताइए मिस्टर सचरन जी। बिल्कुल कपिल, you have included all the things about visitor management and parking management, crisis management, emergency management. You have included all the things. और मैं अपने दर्शकों को ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि we both have started our career from SIS industry, and we are from GTO bank. Kapil is also NCCC certificate holder. तो जो अभी का हमारा इंटरेक्शन है एक दूसरे का, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कपिल, कि आप इस इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद आपका ग्रोथ कैसे होता है उसका एग्जाम्पल आज कपिल है। और मैं हूँ और कपिल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद शुरू में सरवाइव करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। कपिल को भी अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन काफी होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ती है, आपकी ब्रिंगिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। और उस चीजों को जब आप करते हुए आगे बढ़ते हैं, सारी डिफिकल्टीज को देखते हुए, मिटिगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में वो सारी चीजें अपने आप तब्दील हो जाती है। तो और मैं आपसे एक कपिल बात करना चाहूंगा। मैं लास्ट टाइम एक जगह गया था इंटरव्यू देने, और गुजरात में गया था। तो वहां पे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा पूछा था, और मैं जब आपसे इंटरेक्शन कर रहा था तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि मैं कपिल से वो क्वेश्चन पूछूंगा, और शायद ये क्वेश्चन मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका अगर आप आंसर दे पाएंगे तो उन लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं कपिल गया था लास्ट टाइम गुजरात, तो मेरे से वहां पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपकी सोसाइटी में, क्योंकि वहां भी इंडस्ट्री में सोसाइटी थी, हाउसिंग सोसाइटी थी,
तो अगर आपके यहाँ हाउसिंग सोसाइटी में अगर कोई विदेशी आके रहता है या विदेशी आ रहा है, तो बीइंग ए सिक्योरिटी हेड या बीइंग ए सिक्योरिटी मैनेजर आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी होती है? तो इसके बारे में कपिल आप बताओगे, जैसे आपके यहाँ अगर कोई फॉरेनर आता है, किसी का गेस्ट, तो क्या गाइडलाइन होती है, उसको क्या इंटीमेशन देना होता है? इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, अगर आप बता सको तो। श्योर श्योर, जस्ट रियली गुड क्वेश्चन। ये ऐसा होता है, अभी जस्ट एक टर्की से भी एक टेनेंट है हमारे पास, वो रह रहे हैं, रियली गुड, इज डूइंग स्टडी आल्सो, अपार्ट फ्रॉम स्टडी इज डूइंग बिजनेस फॉर केसर, केसर बिजनेस भी वो कर रहे हैं। उसमें गाइडलाइन में क्या होता है, जो भी हमारी तो जो चैनल पार्टनर हैं, जो डीएलएफ के चैनल पार्टनर हैं, वो कनेक्ट करते हैं जो भी हमारी एम्बेसी होती है। एम्बेसी से हम उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, जो भी जो चैनल पार्टनर है उनके पासपोर्ट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है वहाँ की और वैलिड है, एम्बेसी से वेरीफाइड होने के बाद में ही वो हम अपने सोसाइटी में, जो हमारा कॉन्सियस टीम है जो इस चीज को देखता है, कंप्लेंट मैनेजमेंट और जो भी रेजिडेंट मूव इन होते हैं, एक कॉन्सियस टीम है, कॉन्सियस टीम के साथ एक फॉर्म फिलअप किया जाता है जिसमें प्रॉपर वो सारी चीजें मेंशन होती है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वैलिड है, पुलिस वेरिफिकेशन है, एवरीथिंग वो होने के बाद ही हम उनको मूव इन का ऑप्शन देते हैं, मूव इन करने का। जब तक डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्लियर नहीं होता है, जब तक हम किसी भी टेनेंट को या फिर ओनर को हम मूव इन होने ही नहीं देते हैं। ये एक डीएलएफ की खासियत है, जब तक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना हो जाए हम मूव इन नहीं होने देते किसी भी रेजिडेंट को। ओके, थैंक ये यू वेरी चीज है। गुड कपिल, ये चीज़ क्लियर करने के लिए। और कपिल, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे जो इस इंडस्ट्री में आने वाले नए लोग हैं, उनका कैसे करियर अपॉर्चुनिटी है, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें। जो हमारे आने वाले नए लड़के हैं, इस ग्रो, इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, न्यू जनरेशन जो भी आ रही है अगर सिक्योरिटी में वो ज्वाइन करते हैं, सबसे मेन चीज है पेशेंस लेवल, क्योंकि जो हमारे जैन जी है उनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है इस फील्ड के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको स्ट्रोंग होना पड़ेगा, स्ट्रोंग है, आपकी ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेल्ट की ड्यूटी करते हैं। जैसे आप फौज में, पुलिस में, आर्मी में, जहाँ पे भी आप ड्यूटी करते हैं, डिसिप्लिन होके आपको ड्यूटी करनी होती है। सेम थिंग सिक्योरिटी को लागू होता है, और वो ही चीज आपको आगे लेके जाती है। कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पे आप ड्यूटी करते हैं, जो भी आपको टास्क दे दिया आपको, आप उसको कैसे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं ईमानदारी से, मेन चीज यही है। बाकी आप साथ के साथ अपनी लर्निंग रखें, न्यू चीजें सीखें, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करें। अब तो काफी अपॉर्चुनिटी है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स भी आ गए, पहले इतना नहीं था, एआई भी आ गया है, नए टूल आ गए हैं सीखने के लिए। आजकल यूट्यूब चैनल है, जैसे आप कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, काफी चीजें हैं आप और सीखने के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके, वेरी वेरी गुड कपिल, थैंक यू। कपिल, लास्ट जो राउंड है वो थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है, तो आर यू रेडी? हाँ, आई एम रेडी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, कौन सा कन्वीनियंट होता है एक सिक्योरिटी पर्सनल के लिए? सिक्योरिटी पर्सनल के लिए कन्वीनियंट जो होता है मेनली डे शिफ्ट ही होता है, क्योंकि डे शिफ्ट में क्या होता है, वो एक्टिव होता है, थोड़ा एक्टिव होने से उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बड़ी रहती है, और डे लाइट में जो काम होता है वो सबको विजिबल भी होता है। नाइट में थोड़ा चैलेंज आ जाता है, लाइटिंग कम होती है, थोड़ा डल होता है, आदमी सोचता है थोड़ा रेस्ट कर ले। बट नाइट शिफ्ट में भी एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, जिससे कि हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत कर सकें। मेनली प्रेफर डे शिफ्ट इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है, मैन पावर मूवमेंट होता है, आदमी जो मूवमेंट करते हैं डे शिफ्ट में करते हैं, तो डे शिफ्ट में चैलेंज ज्यादा होते हैं। नाइट में भी होते हैं, बट नाइट में थोड़ा मूवमेंट कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है ओनली जिनको कुछ क्रिएट करना होता है, थेफ्ट अटेम्प्ट करना, वो नाइट में करते हैं। तो इसलिए हमें नाइट में हमारी टीम को मोर विजिलेंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो
from my side, day shift should be preferred. अगर मैं बात करूँ सीसीटीवी और मैन पावर, तो उन दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है? सीसीटीवी और मैन पावर। इम्पोर्टेंट दोनों ही है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सीसीटीवी भी इम्पोर्टेंट है, मैन पावर भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सीसीटीवी एक टूल है मॉनिटरिंग करने का, अलर्ट देने का, बट जो मैन पावर है रिएक्शन करने के लिए मैन पावर है। सपोज आपने कोई इंसिडेंट होता देख लिया, कोई somebody स्टक इन लिफ्ट, आपने सीसीटीवी से उसको डिटेक्ट कर लिया कि somebody स्टक इन लिफ्ट, तो देन व्हाट सीसीटीवी विल डू? नथिंग, ओनली सीसीटीवी कैन गिव द अलर्ट। देन जो कंट्रोलर है, सीसीटीवी ऑपरेटर है, वो इमीडिएट अपनी जो रिस्पॉन्स टीम है, पेट्रोलिंग टीम है, उसको मैसेज देता है, ये नंबर लिफ्ट है, वहां पे somebody stuck on that floor, प्लीज रीच देयर एंड प्रोवाइड हेल्प। उसके साथ साथ वो इमीडिएट जो हमारी टेक्निकल टीम होती है, लिफ्ट को जो देखती हैं, ऑपरेटर होते हैं, साथ में ही उनको साथ भी कनेक्ट करता है, इधर से सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करता है, साथ में ही टेक्निकल टीम के साथ कनेक्ट करता है उसको इमीडिएट क्लोज करने के लिए। बाकी लिफ्ट में जो हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसमें क्या बोलते हैं, फोन भी लगा हुआ है, जिससे इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कनेक्ट कर सकते हैं उससे। तो उसको सांत्वना देनी होती है सीसीटीवी ऑपरेटर को, आप घबराए नहीं, हमारी टीम आपके पास पहुंच रही है, आप बेझिझक आराम से शांत रहे। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं सिचुएशन को। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी स्किल? मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी स्किल्स मेनली तो जो स्किल्स है वो अलर्ट विजिलेंट होना चाहिए, और जो आपका व्यवहार है सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए सिक्योरिटी में, जिससे कि आप सामने वाले को अच्छे से समझ सके और उसको अच्छे से रिप्लाई कर सके, वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम हार्श होके बात करेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही आता है, somebody can fight also, so we should be calm in the security industry for manage everything politely and effectively. अगर मैं कहूँ वन लाइन एडवाइस फॉर सिक्योरिटी गार्ड, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सिक्योरिटी गार्ड के लिए वन लाइन डिसिप्लिन है। ओके, वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब डिसिप्लिन, दिया, क्योंकि डिसिप्लिन ही बुनियाद है और डिसिप्लिन से ही हम लोग इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। और कपिल, रियली आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद इतना बढ़िया इंटरेक्शन भी किया, और इस इंटरेक्शन के साथ में आपने बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपने जवाब दिया, और प्रैक्टिकल जवाब देने के साथ-साथ आपने इतने कम समय में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बताया हमारे दर्शकों को। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इस इंटरेक्शन को, इस सेशन को देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कपिल कि आप और भी बेहतर करें, और मैं लास्ट में दर्शकों को अपने ज़रूर बताऊँगा कि मैं और कपिल एक साथ अपने करियर की शुरुआत किए थे, और हम दोनों लोगों ने भी एजेंसी के थ्रू शुरुआत करी, और एजेंसी के थ्रू शुरुआत करने के साथ-साथ कभी भी हम लोगों ने सीखने की जो हमारी ललक थी, हमने उस सीखने की स्किल को बनाए रखा, और उसी स्किल को हम लोगों ने आगे करके, बढ़ के और कोर्सेज़ करके आज आप डीएलएफ में सिक्योरिटी मैनेजर हैं, मैं इधर डालमिया ग्रुप में हूँ, और मेरे साथ के बहुत सारे बैचमेट हैं जो कि एक्स सर्विसमैन नहीं होने के बाद भी एक अच्छी मुकाम हासिल कर लिए हैं और आगे भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा ये वीडियो था आप लोगों के बिल्कुल काम का होगा। और कपिल, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, थैंक थैंक यू यू कपिल, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।